you're done with CAT. अब चाहे CAT अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जैसा भी हुआ है, नेक्स्ट स्टेप्स लेने पड़ेंगे. एंड मोस्ट ऑफ यू वुड बी हैविंग दिस क्वेश्चन, कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है. स्नैप भी आ रहा है, जैट भी आ रहा है. अगर नहीं अप्लाई करा है जैट के लिए तो कर लीजिए. बट इस वीडियो में मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी वन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू योर probably your 3 plans, one of your plans amongst the 3 plans basis how do you think about your CAT, how do you feel. Then let's talk about Snap, let's talk about ZAT. Let me give you an integrated study plan for Snap and ZAT, at least give you a intro of that, and then also something about interview prep. That's what we'll do. This video is supposed to be the only video you need to get clarity on what your roadmap has to be. I am Darpan Saxena, an MBA graduate from IIM Udaipur. I have been the MBA product head at Career Launcher. I am the founder of Creatum and I help MBA students create fulfilling careers without depending on placements. So let's get on and understand it exactly what all you need to do after CAT. Now first thing is that let me ask you this question because I know this is the hot topic. Whichever online forums I go to, all the students who are in my Telegram group and everybody, they ask me this one question that sir CAT, CAT ऐसा हुआ सर, CAT में attempt सर, CAT ये कर सर, CAT वो. पहली चीज़ है देखो यार, okay let's talk about CAT because we have not spoken about CAT as yet and how did it go. See, there are only 3 feelings you would be feeling right now after having seen all the analysis, my analysis, everybody's analysis, which is almost the same. Analysis में कोई बहुत फर्क नहीं है. 3 ही फीलिंग आ सकती है. पहली फीलिंग शायद आ रही होगी कि what, I am expecting my dream percentile. Whatever I have attempted, basis the analysis, basis the predicted score, this and that, expect कर रहा हूँ. उसके लिए मैं कहूँगा there is a plan A which I am about to advise you, follow that plan A. Then probably you're somebody who's unsure about your dream percentile. So when I'm saying dream, it could be different for different audiences. So for example, if you might be an SC, ST, OBC, a category student, तुम्हारे लिए dream जो है कुछ और ही है. But generally, if you are a general category student, then probably in this second one, you are somebody who's like यार मैं sure हूँ 94-95 plus percentile तो ला ही रहा हूँ या ला ही रही हूँ, but यार 98 या 99 या फिर 99.5 क्रॉस होगी कि नहीं वो नहीं पता है. मतलब ब्रॉड रेंज पता है, इतना मैं खराब नहीं हूँ या नहीं हूँ कि 96 ला रही होंगी या 5 ला रही होंगी, बट या फिर हो सकता है हो जाए बिकॉज कितने सही हो क्या गलत तो एक वो भी लोग हैं. फॉलो प्लान बी एंड प्लान सी है कि भाई पता है यार एज ऑफ राइट नाउ CAT डिडंट गो दैट वेल बिकॉज DILR में अगर 2-2.5 सेट से कम अगर अटेम्प्ट करा है बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. वहां पे प्रॉब्लम होगी. यहाँ पे क्वांट में अगर सिंगल डिजिट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं प्रॉब्लम होगी बिकॉज उससे अब आपकी परसेंटाइल जो मैक्सिमाइज हो सकती थी वो नहीं होगी. एंड VRC तो वी डोंट नो बिकॉज इतना सिंपल था कि उसमें अब कितनों की क्या क्या परसेंटाइल्स होंगी वी डोंट नो. फॉलो प्लान सी फॉर दैट, एज सिंपल एज दैट. प्लान बी एंड प्लान सी आर सिमिलर बट विद वन डिफरेंस. नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड यार प्लान ए क्या है, तुम्हारी अगर ड्रीम परसेंटाइल क्या है. एंड इफ यू आर समबडी हु सैड अबाउट CAT दिस एंड दैट, वेट टिल प्लान सी. सी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो बिकॉज इसके बाद मैं स्नैप के ऊपर वील टॉक, जैट के ऊपर वील टॉक, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. स्टिक अराउंड, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो. लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज बहुत कुछ और भी आएगा. देखो यार सीधी सी बात है, प्लान ए तुम्हारा है, ड्रीम परसेंटाइल है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, feel really happy about yourself. I hope in the last 24 to 48 hours you've enjoyed yourself. अपने आप को शाबाशी दी हो. I am not saying go out and party and enjoy. एक बार स्कोर कार्ड आने दो, सब कुछ आने दो फिर करना. But yes यार, let's take a break to understand that we've done really well. Like the on the D day when it mattered the most, you did well. Now the second thing is yaar, first of all what you need to do is, even if you think you're scoring a 98 or a 99 plus or whatever, I am still advising you, strongly advising you, it is coming to you from a mentor, from an educator, not an influencer. Apply for ZAT 2025. For you it is going to be a backup कि just in case मैं 99.3 एक्सपेक्ट कर रही हूँ मगर अगर 98.3 आ गई, 98.3 आ गई तो कंसिडरेबली मेरे B स्कूल्स चेंज हो जाएंगे. या फिर अगर मैं 99.5 एक्सपेक्ट कर रहा था बट अगर वो 99.1 आ गया उसमें भी थोड़े बहुत B स्कूल्स चेंज हो जाएंगे. कौन से वाले? ऑब्वियसली ABC चेंज हो जाएगा. देयरफॉर ABC की रैंक का एक और B स्कूल है XLRI जमशेदपुर. Why would you want to miss out on that? Why would you want to go to an IIM Indore when you could have been at an XLRI Jamshedpur? Makes more sense to be at an
XLRI if you were to ask me. In the same way, now with ZAT you have more opportunities, and there on your screen you can see that I have specified only the top 2. I have not even specified about XIMB and all of those things. मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी ड्रीम परसेंटाइल आने वाली है कि भैया XLRI दिल्ली भी अगर है, that is very much comparable to your IIM Indores of the world, IIM Kozhikode of the world. Even in the worst case it is comparable to your IFT and MDI. better ही है, और 2 साल में तो और better ही हो जाएगा. That is the thing. So you have good B schools, please apply. I request you. I need to see you for this. I would still say go for ZAT. अभी भी डेट है, अप्लाई कर सकते हैं. ZAT दीजिए अनलॉक फॉर द सेक ऑफ XLRI. अप्लाई फॉर इट. थर्ड स्टेप यार, नाउ देखो सीधी सी चीज है. योर 2 steps have to be very clear. ZAT prep, clear cut ZAT prep and interview prep. Now ZAT prep क्या करनी है and interview prep वो मैंने आगे करना है एक्सप्लेन. So stick around. यहाँ पे अभी प्लान ABC I'm going to talk about your mindset. As simple as that. अभी mindset की बात करते हैं, प्लान ऑफ एक्शन की बाद में बात करेंगे. प्लान बी देखो, प्लान बी कौन हो? तुम्हें पता है अच्छे आ रहे हैं, मगर ये दिख नहीं रहा कितने अच्छे आ रहे हैं यार. ड्रीम आएगी कि नहीं आएगी? अगर रह गया तो फिर से वही होगा यार, कॉल्स ही नहीं आ रहे, बेकार से कॉल आ रहे हैं, जाना वहां पे मुझे है नहीं, अब क्या करें भाई. देखो सीधी सी चीज है तुम्हारे लिए. इट्स ओके, यू डिड वेल, यू आर स्टिल स्टक. हो सकता है नंबर लाओगे नहीं लाओगे पता नहीं, बट यार यू डिड वेल. अगर तुम इस स्थिति में भी हो दैट यू आर टॉकिंग दैट यू नो व्हाट, आई माइट गेट दोज नंबर्स, आई माइट नॉट गेट, यार ठीक है. सेकेंडली, इन योर केस आई वुड स्पेसिफिकली से, एंड ऑल्सो इन ऑल द केसेस आई वुड से दिस, दैट प्लीज वेट फॉर योर रिस्पॉन्स शीट्स विच विल कम आउट इन द नेक्स्ट 1 week और सो एट मैक्स. यही होगा, उससे बहुत क्लैरिटी होगी. बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो रिस्पॉन्स शीट के बेसिस पे तुम्हें और बेटर प्रेडिक्शंस दे पाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल कोचिंग इंस्टीट्यूट like CL is going to do that really well. I know that. If you are able to get good scores in that, I would instantly urge you to please move to plan A. अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि यार स्कोर अच्छा आएगा तो प्लान बी पे शिफ्ट कर जाना, बिकॉज प्लान A is about you knowing कि हाँ होगा, फिर भी ZAT के लिए तो you have to apply. So what are the 2 steps which you need to do? What are the, what have to be the focus areas for you in your case? It's simple. In your case, I'd suggest is that ZAT and SNAP both have to be your focus areas, but ZAT as it has to be your goal for the sake of XLRI, the 2 campuses of XLRI. ZAT पे फोकस कर लीजिए. स्नैप अगर रजिस्टर करा है, बिकॉज अब आप नहीं कर सकते हैं, अगर आप स्नैप दे रहे हैं, स्नैप के लिए करा हुआ है, देन स्नैप यूज इट ऑल्सो एज वन ऑफ योर मेन एग्जाम्स. बैकअप कह लो, मेन कह लो, दोनों एग्जाम्स अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिम्बायोसिस SIBM is a great place to be at. XLRI definitely is probably now the best place to be at for you. That's that, and you should do it. How do you do it? What are your next steps? Again, now what you need is a integrated SNAP and ZAT prep. So further down in the video, that is also what I'll be sharing with you, that if you're somebody who's appearing for SNAP and ZAT both, then integrated study plan क्या होना चाहिए. See again, this video is to capture all of those things जो ZAT के लिए prepare कर रहे हैं, SNAP के लिए, और अगर integrated दोनों साथ में कर रहे हैं, अगले 5 हफ्ते क्या करना है आपको, all of those things are here in this video. Now for somebody, what should be the mindset for somebody if you are somebody for whom CAT did not go as per plan? And I can tell you this would be a lot of you, your friends, or a lot of you around you would be in this phase. See, one simple thing, फर्क बस इसमें ये है. First thing is that यार फर्स्ट अटेम्प्ट है अगर, तो हार्श मत हो अपने ऊपर. इट्स ओके. फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं गया था तो मेरे 84 परसेंटाइल आए थे कैट में. While I'm saying that does not mean that I'm saying अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो किसका होता है यार, क्या है, क्या बड़ी बात है. नहीं, I am no standard. मेरे अगर नहीं आए तो मतलब ये नहीं है कि किसी के नहीं आते. दुनिया के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.9 लाख के निकाल के आगे बढ़ जाते हैं. बट आई एम सेइंग बहुतों के नहीं आते, बहुतों के मतलब मेजॉरिटी के नहीं आते फर्स्ट अटेम्प्ट में. सो दैट इज फाइन. डोंट बी दैट हार्श ऑन योरसेल्फ. एंड अगर रिपीटर हो यार, मैं फिर भी कहूंगा इट इज स्टिल ओके. सेकंड अटेम्प्ट में हो फिर भी ठीक है. थर्ड अटेम्प्ट में हो तो थोड़ा कंसर्निंग है, तब उसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी मेरी कि अगर थर्ड अटेम्प्ट था और कैट खराब हो गया है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, तो वो वीडियो आएगी आफ्टर ZAT. बिकॉज अभी तुम्हारे पास ZAT है भाई. तुम जो भी हो, तुम चाहे चौथे अटेम्प्ट वाले और तुम्हें पता है कि कैट अच्छा नहीं हुआ, फोकस एरिया क्या होना चाहिए भाई? अगेन द सेम थिंग. ZAT हैज टू बी योर गोल. स्नैप एज अ बैकअप कह लो, मेन एग्जाम कह लो, वट एवर. अगर स्नैप के लिए फिल कराए, फॉर्म फिल कराए, दीज 2 आर एग्जाम्स. आपको मैं नेक्स्ट स्टेप्स में सिर्फ एक चीज कहूंगा, इंटीग्रेटेड स्नैप एंड ZAT प्रेप. आपको इंटरव्यू प्रेप अभी करोगे भी तो किस मन से, विद व्हाट फीलिंग वुड यू डू एन इंटरव्यू प्रेप राइट नाउ? दैट इज नॉट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो एक्शन स्टेप्स आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर समबडी हुज डन रियली वेल. ZAT दे दो, स्नैप छोड़ सकते हो, देना चाहो तो दे दो. मतलब अब तो फॉर्म फिल नहीं
नहीं कर सकते, but all of those things. So for you it's probably Zat. For somebody else, if you have Snap and Zat, then that's that. And also along with that, see, for somebody who's close around, they know that they have to do your interview prep as well as they have to do Snap and Zat. तो जो अभी अनश्योर है कि ड्रीम परसेंटाइल आएगी कि यार ठीक ठीक आएगी, उसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत है यहाँ पे. अगर आप उस रेंज में हो जो कि मेजॉरिटी होगी, आपको बहुत काम करना है. बाकियों को तो क्लियर है, बाकियों को मालूम है कि यार Zat देना है एक, और उसके साथ साथ इंटरव्यू. एंड जिसको मालूम है कि यार इंटरव्यू की तो अभी नौबत ही नहीं है, उसको स्नैप और Zat देना है, अगर स्नैप के लिए फिल करा है वो. अब बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्स के बारे में, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. व्हाट यू नीड टू नो अबाउट स्नैप एंड Zat सो दैट यू कैन मूव ऑन विद कॉन्फिडेंस. बिकॉज अभी बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये है कि सर मालूम ही नहीं है कि सर स्नैप और Zat क्या है, बिकॉज पूरे साल तो कैट कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सिर्फ कैट करता था. बिकॉज ऑब्वियसली कैट एग्जाम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज बेस्ट ऑफ द बी स्कूल्स ओपन अप थ्रू कैट. बट डज नॉट मीन दैट यू विल नॉट टेक केयर ऑफ अ स्नैप, यू विल नॉट टेक केयर ऑफ अ Zat. बिकॉज कहीं एडमिशन ना हो उससे बेहतर है सिम्बायोसिस SIBM में हो जाए या फिर XLRI में हो जाए, बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू कहीं ना हो इस साल. Therefore, do not worry about it. Let's try and understand what this beast Snap is all about, and then we'll understand Zat also. Then I'll give you a integrated study plan also. Again, I would once simply say, do not forget to like the video, subscribe to the channel. Why? Because अभी तो मैं आपको snippets में समझाऊंगा Snap और Zat के, subsequent videos में और detailed videos Snap Zat के ऊपर. Snap NMAT से थोड़ा कंपेरेबल है क्या? अगर NMAT के लिए प्रिपेयर करा हुआ है तो Snap में काम आएगा क्या? थोड़ी इनसाइट्स दूंगा, वहां पे कंपैरिजंस करूंगा, काम आसान हो जाएगा. ऑल्सो उसके आगे भी बहुत कुछ है. सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स. सी, स्नैप को समझते हैं सिंपली पुट. स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. स्ट्रक्चर क्या है भाई? 3 सेक्शंस आते हैं. जनरल इंग्लिश, देन यू हैव एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन यू हैव योर क्वांट, DI एंड DS, डेटा सफिशिएंसी, व्हिच इज द थर्ड सेक्शन. 15 क्वेश्चंस इन जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस इन एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड योर 20 क्वेश्चंस इन क्वांट, DI एंड डेटा सफिशिएंसी. टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? टोटल क्वेश्चन 60. समय भी है 60 मिनट. What does it mean? It somewhere means that one, this is an exam of speed. यहाँ पे अब वो वाली बात नहीं कर सकते कि यार कैट में पर क्वेश्चन 2 मिनट, ये वो. यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन पर क्वेश्चन तो 2 मिनट ही लोग हैं. अब यहाँ पे खेल हो जाता है कौन कितना फास्ट है और कौन ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाता है. और बिकॉज क्वेश्चंस कंपैरेटिवली सिंपलर होते हैं एज कंपेयर्ड टू कैट, यहाँ पे इतना ये भी नहीं है कि यू हैव टू पिक एंड चूज द क्वेश्चंस, बिकॉज अपेरेंटली टाइम भी नहीं है होता. सो दिस इज मोर about your speed in general, more about your speed with a set of simpler, easier questions. That's that. This requires a different mindset altogether, by the way. Hello, one of the reasons why I've been saying to subscribe to the channel, there is a reason for that, because Snap, my dear friends, if you're walking into Snap with your mindset of cat ki, oh, you know what, we prepared for cat and this and that is going to really backfire for you, because my dear friends, this requires a different attitude, a different test taking strategy, which for me requires 3 different videos on Snap, which I will do for sure. That's that. Marking scheme is simple and straightforward. +1 for correct and -2.5. So -1/4 for incorrect. This is unlike cat, wherein negative had a higher marking, in the sense अगर +3 for plus मिलता था तो -1/3 हो जाता था उसका. यहाँ पे है 1/4. So that also signals to you something कि शायद ज्यादा attempts का गेम है. Snap is a game of more attempts. We'll talk about this. अभी मैं आपके दिमाग में बस बातें बीज बो रहा हूं ताकि आगे इसके ऊपर जब हम सबसेक्वेंट वीडियोस में बात कर सके. देखा, सिलेबस के ऊपर जब आप आओगे बहुत कुछ है यहाँ पे, और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है आपको मैं कैट के स्टैंड पॉइंट से समझा सकूं कि सिलेबस कितना सिमिलर है और कितना हटके है. बिकॉज कैट के लिए आपने करा हुआ है, उससे अगर समझोगे तो ज्यादा इजीली समझ आएगा. जनरल इंग्लिश का सिलेबस ये है आपके सामने. जो मैंने बोल्ड करे हुए हैं वो वाले सब्जेक्ट, वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि कैट में नहीं आते, which you need to prepare extra. When I'll open the 3, or you can start to take screenshots of this also, because that is important. These are the topics which are different from CAT. The ones I've bolded are the ones which are different from CAT, which you have to study. Now, when I'll be sharing with you, the integrated study plan, you will also know कि कब किस हफ्ते में क्या कर सकते हो टाइप्स, वो वाला भी चीज है. Analytical and logical reasoning में mostly जो है, in fact, the reason why I have not done any bolding here is that because most of it is different from CAT. So what I should do in fact is that
let me go ahead and bold everything because except for a few things. So say for example matrix arrangement या फिर linear arrangements होगा वो थोड़ा cat like है, मगर बाकी उसके अलावा बहुत हटके है. But पता है किसके साथ similar है? Hello, now this is one insight which I am dropping to you. This is very much similar to NMAT. This is very much similar to NMAT. So if you've appeared for NMAT, you know Snap is a slightly milder version of NMAT to say. So that's going to help you a lot. So that mindset is going to help you. Now if I come to QA, DI and DS, then here is what you need to know. Again, the topics which I have specified, which I have bolded are the ones which are हटके from CAT. ये आपको अलग से you'll have to read and understand and practice. Again, the point which I'm trying to make is that Snap is a different exam altogether and you need a different mindset as compared to CAT for it. अब आते हैं preparation tools पे. क्या Snap के लिए preparation tools क्या हैं? Exact tools दूंगा और थोड़ा idea कि यार देखो कहाँ से क्या पढ़ सकते हो. सिंपल सी बात है Snap के लिए, यार देखो सीधी सी है चीज. NMAT preparation tools will be good to prepare for Snap. So if you have the NMAT OG guide, the official guide for NMAT, that is going to help you with almost all of these things because उसमें सारे questions आते हैं. Therefore, a very simple advice which I give to my students who are preparing for Snap is that switch back to your NMAT mode. अपने NMAT वाले mode में आ जाओ because Snap is much more closer to an NMAT as an exam, as a experience which you'll have. Previous year Snap papers are important. Previous year मतलब जब तक के भी available हैं आपके पास, उससे question type और LOD का समझ में आता है, definitely समझ में आएगा, चाहे जितने भी old क्यों ना. And mock tests, see, I have to bold this out. Now this time I am bolding mock tests. I'll tell you why. Because for Snap and ZAT, for both of these things, what is going to be the game changer for you is going to be mock tests. Please शर्म, okay, one very important thing. Please शर्म मत करिएगा, आपको थोड़े पैसे खर्चने पड़ेंगे. Snap के ZAT के कायदे के मॉक्स खरीद लीजिएगा, किसी अच्छी कंपनी के मॉक्स खरीद लीजिएगा. प्लीज इन चक्करों में मत आइएगा बाकी इन्फ्लुएंसर्स के. हे फ्री रिसोर्सेज फॉर स्नैप, फ्री दिस थिंग. रिसोर्सेज फ्री हो सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन फ्री मिल जाएगी, दैट्स दैट. मॉक अच्छे क्वालिटी के लीजिए किसी कंपनी के जो कि अपना दिमाग लगा के मॉक प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके वो पैसे ले रहे हैं आपसे. फ्री मॉक्स में मत जाइएगा बिकॉज वो टाइम वेस्ट होगा. वेदर द एक्सपीरियंस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू व्हाट अ स्नैप एक्सपीरियंस और अ ZAT experience is, you don't know. More importantly, forget that. When you're going for good paid mocks, or forget paid and everything, good companies mocks, यार you're gonna get video solutions and all of these things. वो मैं ZAT में समझाऊंगा कि video solutions कितने important हो जाएंगे because ZAT में decision making का जो section है वो सारा का सारा mocks और previous year question से होगा. ये लिख लीजिए आप. That is why let's get back to this and understand this. इसको कैसे use करना है मैं कहीं ना कहीं integrated study plan में explain करूंगा. But for now let's go to understanding ZAT को भी सिमिलर स्ट्रक्चर में डिकोड कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि ZAT क्या है. भाई ZAT एग्जाम में दो पार्ट्स होते हैं. पार्ट 1 ऑफ द पेपर इज लाइक दिस. वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग इज कंबाइंड विद 26 क्वेश्चंस इन दैट. देन योर नेक्स्ट सेक्शन इज योर डिसीजन मेकिंग सेक्शन, इंटायरली न्यू सेक्शन. इसका कैट से कोई लेना देना नहीं है, किसी एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है. एंड देन योर क्वांट एंड DI और QA DI इज कंबाइंड इन वन सेक्शन. दैट्स दैट. दिस इज आल्सो सिमिलर टू अ स्नैप कि क्वांट एंड DI कंबाइंड है. 26 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चंस, 28 questions. This is that. Part 2 is a very short exam instantly after the first part it happens, which is a general knowledge exam. 20 questions आएंगे. Last year तक इसमें 25 questions आते थे. Total questions कितने हुए? Part 1 के 75 हो गए, Part 2 के हो गए 20, 95 questions होंगे. समय कितना मिलेगा? 3 घंटा. 3 घंटा मतलब 170 में. Okay, now this is very important. In Part 1 you will get 170 minutes and Part 2 these 20 questions you have to do in 10 minutes. Total 180 minutes हैं. अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं यहाँ पे. पहली चीज आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली देन द इक्वेशन इज 75 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट 1. हेलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अंडरस्टैंड लाइक दिस बिकॉज दिस वीडियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर माइंडसेट राइट. दिस बेसिकली मींस 75 क्वेश्चंस के लिए 170 मिनट्स हैं एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ जीके के लिए हैं 10 मिनट्स. अब आपको कुछ को ये लगेगा यार 20 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट. अरे बिकॉज जीके है ना यार, जीके में तो तुम्हें आता है या नहीं आता है. यू हैव टू मार्क एंड मूव अहेड, मार्क एंड मूव अहेड. दैट्स दैट. Second thing which I'd like to say about both ZAT and Snap, which is important, इसमें intersectional time guidelines नहीं है. So for example in CAT you knew that VARC was for 40 minutes and then you cannot come back to VARC. In the same way DILR is for 40 minutes, you cannot come back to DILR. Quant is for 40 minutes. In Snap and ZAT that is not the case. Intersectional time
टाइम लिमिट्स नहीं है। तो पार्ट 1 में VA में, DM में, क्वांट में जितना भी समय आपस में आपको स्पेंड करना है आप कर सकते हैं, which is why my dear friends, now again I am hell bent on saying this again. That's again the reason why you need to like the video, subscribe to the channel, because you need to watch more videos on this, because now there's a new added element to your test taking strategy. कैट ने तो कहा था 40-40 मिनट करके मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सोचना नहीं पड़ेगा। स्नैपचैट में तो अब तुम्हारा ही सर दर्दी है कि टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी हैज अ न्यू डायमेंशन टू इट, व्हिच इज टाइम मैनेजमेंट। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? सो माय डियर फ्रेंड्स, देयरफॉर स्टिक अराउंड बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज गोइंग टू रियली बी अ गेम चेंजर। मार्किंग स्कीम में थोड़ा और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। जैट में करेक्ट के लिए मिलते हैं +1, इनकरेक्ट के लिए मिलते हैं -2.5, विच इज द सेम एज स्नैप। बट अब आपको जैट, अब आपको क्या, बहुत समय से जैट आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए भी पेनलाइज करता है। आप पूरे एग्जाम में 8 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हैं, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मगर जैसे ही आप 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स अनअटेम्प्टेड छोड़ेंगे, हर क्वेश्चन का आपको -0.5 होना शुरू होगा। तो अगर आपने 8 क्वेश्चंस छोड़िए, कोई नेगेटिव नहीं है, उसके बाद 9th ऑनवर्ड्स हर छूटे हुए क्वेश्चन पे -0.5। एवरी क्वेश्चन दैट यू लीव इज गोइंग टू इनवाइट अ पेनल्टी of -0.5, which means what? Another dimension in the test taking strategy. Is that saying that you should attempt more questions? I think so, yes. Which means even that from initially 5 years back, जब तक ये नहीं था तब तक that was an exam of selecting questions. Now that is an exam of attempting more questions and getting better at your game. That's that. Again, this requires a different level test taking strategy. That's why in a lot of my videos to my students who are in my Telegram group and in my courses, I always say CAT तो फिर भी कंपैरेटिवली इजियर एग्जाम है। स्नैप, जैट, एनमैट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी की जो कॉम्प्लिकेशंस है, भाई वो असली खेल वहां पे है। तो अगर आप जैट क्लियर करते हो, यू आर क्वाइट एन अचीवर। अगर आप स्नैप क्लियर करते हो, आप बहुत बेवकूफ नहीं है, आपके पास बहुत दिमाग है। देयरफॉर दैट अगेन नेगेटिव मार्किंग, जीके के जो 20 सवाल है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और दूसरी चीज, जीके का जो परसेंटाइल है, स्कोर है, वो आपके फाइनल परसेंटाइल में कैलकुलेट नहीं होता। ये सिर्फ इंटरव्यू के समय पे जो एक कॉम्पोजिट स्कोर होता है ऑफ योर इंटरव्यू, एंड ऑल्सो इंटरव्यू के टाइम पे they will make you write an essay, which till few years back was a part of this exam itself, that essay भी होता था। अब ये काम उन्होंने वहां पे शिफ्ट कर दिया है, तो वो कॉम्पोजिट स्कोर में परसेंटाइल, जीके स्कोर सब ऐड होगा। बट अभी आपको चिंता करनी है ऊपर वालों की, और जीके भी इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़नी है सब कुछ मैं समझाऊंगा आगे। सिलेबस क्या है यार, अब देखते हैं सिलेबस का फर्क क्या है। जैसे मैंने स्नैप के लिए एक्सप्लेन करा, देखो वर्बल एबिलिटी और LR में कोर्स ये है, जो अलग चीजें हैं जो कैट में नहीं आती मैंने बोल्ड कर दी हैं बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। DM तो पूरा सेक्शन ही अलग है। DM डिसीजन मेकिंग मोस्टली इंक्लूड्स hypothetical situations, some of them are behavioral, some of them are even mathematical, and you need to make a choice that what as a manager, as a future leader is the best choice which you have to make. It's a very interesting question, personally my favorite question. मैंने जब ZAT लिखा था अपने उसमें समय में मेरे बढ़िया नंबर आते थे DM में, मुझे यह है आइडिया, इसलिए for me to make videos on DM is gonna be even more fun because DM was fun for me. मुझे XLR के कॉल्स आए हुए थे उस समय, तो आया रहता है कि यार ये मैं कर लूंगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, स्टैमर करता हूँ इसलिए प्रॉब्लम है। एनीवेज, नाउ लेट्स कम टू QADI, एंड इसमें मोस्ट ऑफ द कोर्सेज सेम एज कैट एक्सेप्ट फॉर समथिंग नोन एज सर्ज एंड इंडाइसेस। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा। बट देखो अगर समझ आई होगी, इवन इन स्नैप एंड इन जैट और कैट में बड़ा क्वांट सिमिलर है, LOD का फर्क है। LOD इज व्हाट, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, एंड स्नैप के लिए आपको थोड़ा एनमैट साइड पे यू हैव टू गो, जैट के लिए थोड़ा कैट साइड पे जाना पड़ेगा। उस स्पेक्ट्रम में देखो, ये बड़ी एक ब्यूटीफुल थॉट है व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर स्नैप इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एग्जाम्स, गो मोर टुवर्ड्स द एनमैट साइड बिकॉज वो क्लोजर है। जैट थोड़ा कैट से मतलब क्लोजर है। दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू नो। प्रेप टूल्स क्या है, इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। प्रेप टूल्स देखो भाई, सीधी सी बात है, फॉर VA प्रेप टूल्स हैज टू बी योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, जैट में VA में थोड़े क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने ऊपर भी शो करे थे, जो कि हैं अलग। जैट में RCs आती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, बट उसमें पोएम्स भी हो सकती हैं। तो अगर वो आपको पोएम्स प्रैक्टिस करनी है, दो ही जगह है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर किसी कंपनी के मॉक टेस्ट्स। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल रीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ VA देयर एज वेल। सो दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू प्रेप वेल, एंड ग्रामर क्वेश्चंस जो कि कैट में नहीं आते।
है। LR में आई कैन टेल यू दिस वन थिंग, whatever tools you had for CAT, वो ही tools LR में काम आएंगे। It's the same, similar है, वही mindset के साथ LR solve होना है। If you're somebody who is not prepped for CAT and is thinking कि यार क्या करना है, one source which I would suggest is the OpenCAT by CL. It's a free tool, it's a free thing. Just go register yourself on there, this thing, and you get so much in there about CAT. सब free में मिल रहा है, इतना ज्ञान, वीडियोस हैं, ये सब है। आई थिंक एक आध मॉक टेस्ट भी शायद होंगे, बट दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, एंड सम YouTube playlists on LR with which you would have prepared for CAT will anyways help you. That's that. DM जो है, DM के लिए भाई previous year questions is everything. Previous year questions and mock tests. That is why here is one thing which I had said to you earlier as well. भाई प्लीज किसी कंपनी की, अच्छी कंपनी की, CL जैसी कंपनी की, और भी बहुत कंपनियां हैं, मगर CL is one of the names which I can tell you because I've been there and I know it that it's good. ऐसी कंपनी की mock test ले लेना because of this one reason. भाई you need to watch expert solutions of your mock tests and previous year questions, because DM में किस mindset से सोचना है वो आप solutions पढ़ के नहीं समझ पाओगे। किसी expert को देखो वो क्या समझा रहे हैं कि जी ये ऑप्शन क्यों नहीं था या फिर ये ऑप्शन क्यों था, इसीलिए खरीद लेना, यहाँ पे शर्माना मत, पैसे थोड़े लगाने पड़ेंगे इसमें, काम हो जाएगा तुम्हारा। QA and DI again I would say similar to CAT, therefore CAT prep tools जो है OpenCAT by CL is something which you can take, और YouTube playlist है, दोनों ही फ्री है भाई, OpenCAT भी फ्री है, ये भी फ्री है। यहाँ पे बस थोड़ा ये एडवांटेज है that it is more structured. That is that. My dear friends, I hope you've got clarity about Snap and Xat, because now what I'll be taking you to is the integrated study plan for Snap and Xat. I would want you to go down in the comments and let me know whether you have better clarity about Snap and Xat or not. If yes, write down yes. If no, write down no. Yeah, I don't care. But write it down, because I want you to actually move your hands right now, because now your mind needs to be active and it needs to be more receptive of what I am going to say now. Therefore, let's move on to the integrated study plan for Snap and Xat, because that is what you'll need. See, because I had to do this, I had to split it into weeks. It starts from 27th, which is tomorrow, which is tomorrow, till Xat, which is happening on 5th of January. And this is week wise. See, simply put, for this first week, from now till Sunday, 1st of December, week 1, yeah, if you are seeing this in any other year also, is the same thing. Your focus has to be Snap, as simple as that. अगर Xat भी कर रहे हो, अभी Snap करके देखो, अगला हफ्ता, ये हफ्ता Snap को पक्का कर लो, बिकॉज आगे तुम्हें दोनों चलाने पड़ेंगे। आगे तुम्हें Snap और Xat चलाना होगा। तुम्हें Xat प्रेप को और मॉक टेकिंग को बड़ी इज्जत से 1 महीना देना पड़ेगा। Xat में मत सोचिए कि ओ पहले ना मैं ना ये Snap कर लूंगा, अगर Snap मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर ये वाला अटेम्प्ट है, मैं 15th तक आई विल डू Snap, देन मैं 15 से एकदम से मैं Xat उठाऊंगा, नहीं होगा। Xat को इज्जत दीजिए। Xat एक बड़ा CAT कंपेरेबल एग्जाम है, बिकॉज Xat आपका रास्ता खोलता है फॉर एन XLRI जमशेदपुर, which is very credible, comparable to IIMS ABC. रास्ता खोलता है XLRI दिल्ली के लिए, जो कि comparable to an IIM इंदौर, IIM कोഴിക്കോട്, maybe even going down a bit, IFT and MDI. वर्स्ट केस में तो वहां तक जाएगा ही जाएगा। That's that. So इज्जत दीजिए। Therefore फर्स्ट वीक में फोकस है Snap। टॉपिक्स क्या करने हैं यहाँ पे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आगे ये बात नहीं कहूंगा। अगर आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये कि Snap की रीजनिंग जो है वो बहुत अलग है CAT से, आपने नहीं करी होगी। NMAT के लिए प्रिपेयर करा होगा तो करी होगी, और अगर NMAT के लिए प्रिपेयर नहीं करा है, सिर्फ CAT के लिए करा है, तो पता ही नहीं होगा आपको ये क्या है, व्हाट बीस्ट इज द रीजनिंग इन Snap। एंड अगर यार NMAT के लिए प्रिपेयर करा भी होगा, आई नो हाउ यू गाइज एक्चुअली प्रिपेयर फॉर NMAT, बिकॉज अटेंशन होता है सारा ऑन CAT। देयरफॉर जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था ऊपर, भाई क्या सीन है, देखो Snap में जाता हूँ, Snap का अगर तुम एनालिटिकल का रीजनिंग का सेक्शन, यूल सी एवरीथिंग इज डिफरेंट यार फ्रॉम CAT। दिस इज सिमिलर टू NMAT श्योर, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम CAT। एंड आई हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड यू प्रिपरेशन टूल्स क्या हैं। तो प्रिपरेशन टूल्स क्या है वो ऑलरेडी मैंने कर चुका हूं, आई हैव स्पोकन। बट फर्स्ट वीक में देखना Snap की रीजनिंग खत्म कर लो, और इसी हफ्ते 2 मॉक्स लिखो Snap के। मॉक्स लिखो से मतलब ये है, मॉक्स लिख के भैया एनालाइज कर लेना। CAT में तुम्हें इनफ ज्ञान है, एनालाइज करना जरूरी है। एंड स्पेशली आफ्टर दिस डिबैकल ऑफ CAT व्हिच यू माइट हैव हैड, या फिर इफ यू आर फीलिंग सैड, तुम्हें समझ आ गई होगी यार, एनालिसिस जो दुनिया कहती थी मुझे, नॉट जस्ट मी बट एवरीबॉडी यूज्ड टू से इट, दैट वाज ट्रू, दैट वाज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो एटलीस्ट लर्निंग्स लेके चलो, साथ में काम आएंगी। 2 मॉक यहाँ हो गए। अगले हफ्ते में आते हैं, अब फोकस थोड़ा आपको फैलाना पड़ेगा। अब आपको Xat इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज अब आपको उसको 1 महीने की इज्जत देनी पड़ेगी CAT की, बड़ी सीधी सी बात है। टॉपिक्स अब यहाँ पे क्या है, टॉपिक्स है Snap and Xat के लिए फॉर अ QA, फॉर अ DI, फॉर अ AR, which is LR, something like
like that. Revise all your weak areas, जो कि आपके कैट के भी वीक एरियाज है, बिकॉज देखो क्वांट और डीआई में और उसमें सिमिलर ही है ना यार, सिमिलर है। तो जाओ, वापस जाओ, जो तुम्हें पता है कि यार कैट तक आते आते मुझे पता था कि यार ये टॉपिक ना क्वांट में ठीक से नहीं करा यार, तो छोड़ ही दिया लास्ट में। इस पे तो क्वेश्चन ही मैंने 20 करे, अब मैं सोच रहा हूँ अब समय है भाई जैट के लिए पढ़ लो, कर लो ना उसको क्रैक, मॉक्स देने हैं, वो सब करना है, तो भाई ये कर लो, रिवाइज करो। जैट में भैया अब यहाँ पे ईमानदारी से डिसीजन मेकिंग पढ़ना शुरू कर देना, ये अलग ही चीज है। जैसे स्नैप में मैंने बोला था रीजनिंग अलग है, उसमें लगेगा समय, जैट में डीएम अलग है, समय लगेगा। तो अगर तुम वो इफ यू आर नॉट दैट डीएम गाय, आई एम जस्ट सेइंग इट, यू विल फाइंड टाइम टू अंडरस्टैंड क्या ये लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं आंसर निकालने में। बड़े सिचुएशनल सवाल होते हैं एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना शुरू कर देना। आई हैव ऑलरेडी एडवाइज्ड यू द प्रिपरेशन टूल्स, कहां से क्या करना है। अब इस हफ्ते में नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एवरी वीक यू आर, या देखो इस हफ्ते के बाद से, बिकॉज वी स्टार्टिंग दिस ऑन वेडनेसडे, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स एवरी वीक नथिंग लेस देन 3 मॉक्स पर वीक, नथिंग लेस देन 3 मॉक्स पर वीक। अब इसमें 2 मॉक स्नैप के लिख लेना, 1 मॉक जैट का, विच एंश्योर्स दैट अगर 8 तारीख को उस हफ्ते के एंड तक तुम स्नैप लिखते भी हो तो तुमने स्नैप के 4 मॉक्स दे के रखे हुए हैं, मतलब कि तुम्हें इनफ एक्सपीरियंस है स्नैप में क्या होता है। एंडमैट अगर दिया हुआ है तो है ही एक्सपीरियंस की क्या क्या होता है उसमें। एंड 1 जैट मॉक दे दो, यहाँ पे शुरू कर दो। ये मत सोचना कि यार स्नैप दे दूं फिर जैट दूंगा, नहीं, लेट हो जाएगा। जैट का एक्सपीरियंस बनाना शुरू कर दो, एक करना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं, अगर आपका फर्स्ट डेट ऑफ स्नैप पे हो गया, देन नेक्स्ट में क्या करना है, या फिर नहीं भी हुआ तो भी क्या करना है। फोकस अगेन हैज टू बी नाउ, प्राइमरी फोकस हैज टू बी जैट एंड देन स्नैप। फर्स्ट में क्या था, स्नैप एंड जैट, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जैट एंड स्नैप। इवन इफ योर स्नैप अटेम्प्ट इज कमिंग अप हियर, आई वुड स्टिल से नाउ स्टार्ट टू शिफ्ट योर फोकस टू जैट। मे बी चलो इफ योर स्नैप अटेम्प्ट इज अराउंड 15th, देन आई वुड स्टिल से स्नैप पे और फोकस रखो एंड जैट पे कम रखो। हाउएवर इफ योर snap attempt is late, if it is more closer to if it is more closer to a ZAT date which is here, then already start to shift your focus, because ZAT prep will help you some bit in that, and that is important. Now again, simple same advice, revise weak areas for these 2 things. In ZAT, while you will be doing DM, start to brush up your GK as well. A lot of coaching institutes have free compendiums on GK. Take them, start to read them. There are websites like Jagran, Josh and a few others, or forget even them यार. A lot of coaching institutes will give you free content on GK. उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, जरूरी है। मॉक्स लिखने हैं कितने, सेम थिंग। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ऊपर मैंने कहा था 2 स्नैप मॉक, यहाँ पे अब आई वुड सजेस्ट गेट इनटू जैट मोड, स्टार्ट गेटिंग इनटू जैट मोड। 2 मॉक जैट के, बिकॉज आपने अभी तक यहाँ पे 4 मॉक्स लिख चुके हो स्नैप के, ये एक 5th मॉक हो जाएगा। 5 मॉक्स इन स्नैप इज इनफ, बिकॉज अगेन इट्स नॉट दैट सडनली 6th मॉक इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बट इन जैट यू हैव टू टेक मोर मॉक्स, बिकॉज अभी तक लिखे नहीं है एंड सेक्शंस बहुत हैं थोड़े, मतलब सेक्शंस आर सेपरेट एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग फॉर अनअटेम्प्टेड भी है, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। देन मोस्ट लाइकली यू विल गेट फ्री फ्रॉम स्नैप इन द टेस्ट नंबर 2. फ्रॉम देयर, इन द वीक विच स्टार्ट्स फ्रॉम 16th, नाउ योर फोकस needs to again be more on ZAT, completely on ZAT in fact I would say, because Snap you would have already attempted some 6 mocks already, and that's going to help you. For Snap or ZAT, for all the sections, general sections, I would say keep on revising weaker areas. अब वो समय नहीं है कि जब आप एग्जाम, देखो कैट में यार हो गया जो होना था, कैट में हो गया कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा था, अभी वो नहीं पढ़ा था, ये रह गया था, वो रह गया था, समय था, काश थोड़ा और समय होता, 1 हफ्ते और 2 हफ्ते और। अब मत करना। अब यहाँ पे बहुत जेनेरिक एडवाइस दे रहा हूं मैं बाकी सेक्शंस के लिए कि यार रिवाइज करते रहो, वीकर एरियाज और मॉक्स देते रहो। इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेटेड एडवाइस है भी नहीं, जहां स्पेशलाइज्ड एडवाइस चाहिए वहां पे मैं दे रहा हूं तुम्हें। अब यहाँ पे एक नई चीज मैंने इंट्रोड्यूस करी है, देखो डीएम क्वेश्चंस तुम्हें करते रहने हैं, बिकॉज वो इंटायर सेक्शन है, वहां पे तुम्हें कोई और सेव नहीं कर सकता। हेलो, बाकी एरियाज में जैसे स्नैप में मैंने बोला कि एनालिटिकल रीजनिंग है, वहां पे फिर भी कुछ सवाल होंगे जो आपको आते होंगे। यहाँ पे डीएम इज अ न्यू टेरिटरी ऑल टुगेदर, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन। देन ब्रश अप योर जीके, कंटिन्यू रीडिंग अप ऑन जीके, बिकॉज नाउ दैट्स नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट बट ऑल्सो इन योर इंटरव्यू prep. You have to form your opinions. Focus on different types of RCs, because I've already told you in that you'll get very different kinds of RCs, probably much more complicated, probably it's gonna get, you will also get poems in it, so all of that thing is there. Mocks again, 1 snap mock if you still have snap test and 2 ZAT mocks. Then after this 23rd onwards, when you're definitely going to be free from snap in all cases, see, same thing, mock analysis is very important, different kinds of RC types, and now you've
practiced your DM enough, तुमने मॉक्स भी लिख लिए हैं जैट के बहुत सारे, कम से कम 5 मॉक्स लिख चुके हो यहाँ पे ऑलरेडी। अब भाई समय है तुम्हारे डीएम स्कोर्स को मैक्सिमाइज करने का। तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्रॉम डे वन इंपॉर्टेंट है, बट नाउ इट्स अबाउट स्कोर मैक्सिमाइजेशन। योर लास्ट 2 weeks have to be about, okay, what else is there that I have to do? 3 mocks now, go all in for ZAT. You have to go all in because ZAT requires you to take 10 mocks at least. That is the kind of theory you need to keep in your head. क्या 10 मॉक लिखूंगा ZAT के तब जाके नंबर आएंगे, बिकॉज ZAT मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अब XLRI खोल रहा है। लास्ट वीक टू ZAT इंपॉर्टेंट है, स्कोर मैक्सिमाइजेशन ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टॉपिक्स कुछ नहीं, टॉपिक्स तो यार देखो जो है मैंने तुम्हें किए हैं ऊपर एक्सप्लेन। 2 ZAT मॉक लिखो यहाँ पे शांति से, 10 ZAT मॉक लिख चुके होगे। इफ यू गो बैक टू दिस entire study plan from day 1 till day right now, you would have taken 10 ZAT mocks. That is how I've structured it, and that is what is going to be your takeaway from this integrated SNAP and ZAT study plan. If you have not grasped it, rewind, rewatch this video because एक structure मिल जाएगा। अब उसमें fit क्या होगा, that I've given you कि कहाँ से क्या पढ़ सकते हो। preparation के tools वही हैं। Do not obsess so much over preparation tools. Find something and take mocks. Mock taking is the key. बहुतों की प्रेपरेशन ही मॉक से हो जाती है यार। कुछ भी नहीं है तो मॉक लिखते चले जाओ और एनालाइज करते चले जाओ, वहीं हो जाएगी। स्नैप के लिए मैंने समझा दिया कि एनमैट से क्लोजर है, एनमैट के सब चीजें देखते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहो एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वन लास्ट थिंग आफ्टर विच आई लीव यू, बिकॉज टू सम ऑफ यू इंटरव्यू प्रेप इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली राइट नाउ यूड बी लाइक यार अभी नवंबर में मैं क्या फुल फ्लेजेड इंटरव्यू प्रेप करूंगा या फिर करूंगी, बट दिस इज वेयर विनर्स सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम लूजर्स। आई टेल यू व्हाई, because the ones who start to get into that interview prep mode from right now are the ones who really come out with flying colors, because then suddenly you know, अगर आप okay see very simply put, if you're thinking ZAT के बाद सोचेंगे interviews का, that is anyways late, you know that, but I am not saying that. I am saying the way I've structured these 5 steps, these are very golden 5 interview prep steps. You'll not find it anywhere else. Therefore if you keep on liking this, then go ahead and like the video as well, because this is interesting. One thing which I would want you to start thinking from it right now, अगर इसको एक्टिवली कर भी नहीं रहे हो, दिन में रात में सोचना शुरू कर दीजिए कि आपके MBA से करियर गोल्स क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपके वाई MBA में और आपके जनरल पर्सोना में काम आएगा। दैट हे आई एम परस्यूइंग माय MBA बिकॉज आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू मार्केटिंग और फाइनेंस, और विद इन फाइनेंस व्हाट डू आई हैव टू डू। गेट स्पेसिफिक, डू नॉट गो देयर एंड टॉक ब्रॉड थिंग्स। इफ यू कैन गेट स्पेसिफिक इट्स ग्रेट, if you have not planned it yet, start thinking about it because that is important. How do you do it? I would give you a very simple advice. इसके लिए I have created a course. I would not want you to go around on YouTube और देखो हर चीज के बारे में पढ़ो कि फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है, कंसल्टिंग क्या है, प्रोडमैन क्या है, ऑपरेशंस क्या है। इसीलिए ताकि मेहनत आप सेव कर पाओ और ZAT एंड स्नैप के लिए पढ़ पाओ, I have prepared a course called MBA Specialization Selector. That course is important because in that course I have compiled all of these things. So if you go to the link in the description, you will find this page to my course called How to Be School. Inside this course you get a separate program, a separate course. If you scroll down you will see this, you will get a course called MBA Specialization Selector. This is a standalone very in-depth course which is about all the specializations. You get all the ज्ञान about कि उस specialization में MBA के बाद opportunities क्या हैं, क्या नहीं है, and all of those things extremely important. Now moving on from there, what is the second step which you should start doing? Start to prepare your personal story. If not now, then 2 हफ्ते बाद तो कर देना ही. Which means what? How? Write down your life story on a paper. पूरी स्कूल से लेके अब तक achievement strength जो भी है as a novel, write it down, because then when you write these things down, suddenly you realize that यार okay, there are achievements which I never thought I had, but अब जब लिख रहा हूँ तो अब याद आ रही है कि हाँ ये भी चीज थी. And then define your A to B through MBA journey. This is a very classic template of finding out your why MBA answer, which I always tell to my students. It's that अभी आप A हो, after MBA you will be at B. How will your MBA help you be from A to B? A कहाँ से आएगा? आपकी life story से कि अभी आप कहाँ हो, your strengths, your achievements, your weaknesses, all of those things. Third step, back up your goals. ये जो भी goals plan करोगे with examples and knowledge. अगर आप जा रहे हो और बोल रहे हो कि you know what, I want to build a career in operations, then my dear friend, अगर आपको operations के basics
बेसिक्स भी नहीं मालूम है वो एक्सक्यूजेबल नहीं है, बिकॉज देन ऑन व्हाट बेसिस आर यू सेइंग ऑपरेशंस? या तो आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑपरेशंस में रहा होगा या फिर कुछ ज्ञान है जो आपने रीड करा होगा. Therefore, my dear friends, one simple advice on how you can do this. For this, again, I have created a course called MBA Concept Crashers, in which all the topics which you learn in MBA, like operations, finance, accounting, marketing, इसके मैंने कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंपाइल कर दिए हैं. वो जाके देख लीजिएगा. उससे एटलीस्ट जब आप जाएंगे इंटरव्यू में, एंड वेंस यू हैव फिगर्ड आउट दैट ओके व्हाट इज द गोल विच आई हैव, यू वुड बी हैविंग एनफ कंटेंट एंड नॉलेज टू स्पीक ऑन दैट. एंड ऑल्सो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कुछ ले आना. So say suppose if you're saying that hey, my strength is that I am a good leader, then you should have examples from your life story. That is why this life story thing was important for you to substantiate that. Point number 4 is what? Point number 4 is take mock PIs. Mock PIs लेना शुरू कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा mock PIs. Join a good PDP program, a personality development program. Join it. Preferably if you take a face-to-face in-person program, that would be good. अगर आपके शहर में कोई अच्छा है वो लीजिए, नहीं तो ठीक है ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट इन पर्सन हो तो बेहतर रहता है. That's always good. And finally, and the fifth thing, which is very not easily spoken about और बात नहीं होती है about, but I leave you in this video with this final thought that, my dear friends, for your interview prep, one very important thing is that you need to develop your opinions. अपने opinions को develop कर लीजिए, because what do I mean by that? When you go to your MBA interviews, they don't want you to tell कि अच्छा कि अभी दुनिया में हो क्या रहा है, या फिर if suppose they ask you about the recent elections or something like that, they are not asking you to know the facts. They want to know your opinion on it. Therefore, read more on current affairs, but more important than that, start to think about those topics. So when you are reading, don't just read it to read it. Think about forming your opinion, so that when somebody asks you that, hey, what is your opinion on the current government? Is they, are they good or bad? They are not looking for a right answer or a wrong answer. They are looking for your answer. What is your opinion? And can you substantiate it with your analysis? My dear friends, this is something which is going to be your roadmap for right now. This, if you're a parent, if you're a student, whoever you are, share this around, because this is going to give you a lot of clarity. Basic level clarity तो मिल जाएगी, कहाँ से क्या करना है वो भी समझ आ जाएगा. This is comprehensive. Next few videos are going to be about specific of these areas. Also profile building और सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं. MBA जर्नी है, पैसे कमाने हैं, सब करना है. Do not forget to like the video, subscribe to the channel, and let me know in the comments what do you think about this video. You can tell me कि यार सर बिल्कुल बेकार वीडियो बनाई आपने, इतना लंबा 2 घंटे की वीडियो बना दी, आधे घंटे की वीडियो बना दी और कुछ नॉनसेंस था इसमें. लिखना है लिख देना. अगर अच्छा लगा बता देना यार सर अच्छा लगा, काम आया. लेट मी नो. थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय.